Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। Once again, we are here to study the book of Revelation together with you. हम एक बार फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करने आए हैं And we are on the 59th episode. और हम लोग 59th एपिसोड पे हैं। And the passage is taken from Revelation chapter 17 verses 10 onwards. और जिस वचन का हम अध्ययन करेंगे वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 17 उसका 10 से आगे। Till now we have already seen that there is a woman or a city which is talked about. और हमने अभी तक ये देखा कि एक महिला है और एक नगर है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में बात And the explanation is given that how she is a city which is mounted on 7 hills. और हमने ये पूरा अध्ययन किया पिछले एपिसोड में कि किस रीति से वो एक नगर है जो कि 7 पहाड़ों पर है। And we understand that this indicates the city of Rome. और हम इस बात को समझते हैं कि ये रोम को दर्शाता है Because the world over, this city is known as a city of 7 hills. क्योंकि संसार भर में ये जो नगर है ये 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है। And we have seen in the last episode that how this woman controls the business of the whole world. और हमने पिछले एपिसोड में ये सीखा कि किस रीति से ये महिला जो है ये सारे संसार के बिजनेस को हैंडल करती है। She is promoted by Antichrist. और ये जो है ये ख्रिस्त विरोधी के द्वारा प्रोत्साहित की जाती है। Because the scenario which is shown to John, he sees the woman sitting on a beast. जो सिनेरियो यूहन्ना को दिखाया जा रहा है वो ये है कि ये पशु के ऊपर बैठी हुई है। And that beast has 7 heads and 10 horns. ये जो पशु है इसके 7 सिर है और 10 सींग है। So we understand that she works on behalf of the satanic तो powers. हम इस बात को समझते हैं कि ये शैतान की ताकतों से काम कर रही है And she flourishes as a business city all throughout the world. और ये पूरे संसार में एक बिजनेस सिटी की तरह काम कर रही है। When we read the book of Ezekiel, और जब हम यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ते हैं we see that it is talked about the Satan. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान के बारे में वहाँ पर बात हो रही है। And it is said that he was very proud because he was in business. वो इस बात से घमंड करता है क्योंकि वो एक तरह के बिजनेस में होता है। And he thought that he'll put his seat above the seat of God. और उसने ऐसा सोचा कि वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन लगाएगा। Because he was dealing with the people in give and take business. क्योंकि वो लोगों के साथ ऐसे डील कर रहा था कि वो लेन देन कर रहा था उनके साथ। And that filled him with pride. और ये बात उनको घमंड से भर देती है। The first sin that happened in heaven was because of the business pride. और पहला जो पाप था वो जो स्वर्ग में हुआ वो जो बिजनेस का घमंड था उसकी वजह से हुआ। And the last episode of this world will be also depending on business pride. और जो आखिरी एपिसोड इस संसार का होगा वो भी इस पे निर्भर करेगा कि किस रीति से बिजनेस में घमंड करते हैं लोग। Antichrist will come and cover this world with his business. ख्रिस्त विरोधी आएगा और इस पूरे संसार में बिजनेस करेगा। And the tool for this business would be this city. और जो यंत्र होगा वो ये नगर होगा। And she will be responsible for promoting business globally. और वो पूरे संसार में लेन देन करेगी। John says that 5 kings have already come, 1 is there and 1 is yet to come. यूहन्ना बताते हैं कि 5 राजा आ चुके हैं, एक आ चुका है और एक आने वाला है। This could indicate the emperors of Rome और ये शायद रोम के राजा भी हो सकते हैं or the popes. या पोप भी हो सकते हैं। The city will be managed by different kinds of leaders. ये नगर जो है तरह तरह के लीडर्स के द्वारा चलाया जाएगा। But when the 7th leader will come, परंतु जब वो 7वां लीडर आएगा he will be in connivation or in relationship with the beast. वो इस पशु के साथ संबंध रखेगा And the beast will promote this city. और ये जो पशु होगा वो इस नगर को आगे बढ़ाएगा। And the city will be promoted by a beast with 7 heads and 10 horns. और ये जो नगर है ये इस पशु के द्वारा चलाया जाएगा जिसके 7 सिर है और 10 सींग है। Evidently, Satan is commanding this city. शैतान जो है वो इस नगर को चला रहा है। Verse 10 of 10वीं chapter. वचन
There are also 7 kings, 5 have fallen, one is and other has not yet come, and when he comes he must continue a short time. वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना ही भी आवश्यक है. This is about the rule of Rome. और ये रोमी राज्य के बारे में बात हो रही है. But the rule of the 10 kings is as though they are coming all together at one time. Verse 12. और 12वें वचन में हम देखते हैं ये जो 10 राजा आ रहे हैं ये एक ही समय पर आ रहे होते हैं. Read verse 12, please. हम 10वें वचन को पढ़ेंगे. जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे. So there are 2 kinds of rulers. तो 2 तरह के राज्य होंगे. One are the rulers who are ruling Rome, ऐसे राजा होंगे जो रोम पर शासन करेंगे, and others are the 10 kings which have not yet come, but they'll come suddenly all together. और 10 राजा ऐसे होंगे कि जो अभी तक आए नहीं है परंतु इकट्ठे आ जाएंगे. And verse 11, the beast that was and is not in himself also the 8th. जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है. Now 10 and 8. और 10 और 8. This is a question. यहाँ पर एक प्रश्न है. Whereas you say that there are 10 kings, और जिस रीति से हम देखते हैं कि 10 राजा हैं, but now he talks about the 8th. और अब 8 वाले के बारे में बात करते हैं. Let's turn to the book of Daniel. हम दानियल नबी की पुस्तक में से देखेंगे. And chapter 7. और उसका 7वां अध्याय. And verse 7. और उसका 7वां वचन. फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं. वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है. Now this here Daniel is talking about another beast. यहाँ पर जो दानियल है वो दूसरे पशु के बारे में बात करता है. And he says the 4th animal that is coming, that is the ultimate animal which is to come, is very fierce. और जो चौथा जानवर आने वाला है वो सबसे ज्यादा भयानक होगा. He will be very strong. और वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा. And he will be ruling the world with a very mighty hand. और वो बहुत सामर्थ के साथ पूरे संसार पर राज्य करेगा. And then he says, और फिर वो ऐसा कहता है, the last part, it was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. वह सब पहले जंतुओं के से भिन्न है और उसके 10 सींग है. It appears that there are going to come kingdoms after kingdoms. हम इस बात से ऐसा समझते हैं कि राज्य पे राज आएंगे. And powerful people will be ruling this earth. और सामर्थी लोग आकर इस संसार पर राज्य But then ultimately comes the formation which has Antichrist and which is very, very strong. परंतु अंत में ऐसा फॉर्मेशन आएगा जो कि क्रिस्त विरोधी का होगा और जो बहुत ज्यादा सामर्थी होगा. And he says in verse 8, I was considering the horns, and there was another horn, a little one coming up among them. This is verse 8. और मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 खड़े, उसके बल से उन पहले में से 3 उखाड़े गए. Now here he says they were 10. और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 है. 10 minus 3 is 7. 10 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 7 बचे. But the smaller horn which is coming is the 8th. परंतु जो छोटा सींग यहाँ पर आ रहा है ये 8वां है. So you have 8 horns now. तो यहाँ पर 8 हम सींग देखते. So how will the 10 horns come down to 8 horns? तो ये जो 10 सिंह है ये 8 में कैसे परिवर्तित? See, there will be 7 heads and 10 horns. 7 सिर होंगे और 10 सिंह होंगे. And Bible indicates that 7 heads will have 7 kings. और बाइबल हमें ये दर्शाती है कि जो 7 सिर है वो 7 राज्यों को बताएंगे. Rest of 3 will be the kingdoms and rulers of this world, means the great business tycoons of this world. और 3 जो बचे हुए होंगे वो बिजनेस टाइकून्स होंगे. With lot of money. और उनके पास बहुत सारा. And they will be controlling along with the 7 kings the whole world. और पूरे 7 राजाओं के साथ वो मिलकर पूरे संसार पर राज्य So करेंगे. initially Antichrist will be nowhere. तो शुरुआत में जो क्रिस्त विरोधी है वो कहीं नहीं दिखेगा. He will start a very humble beginning. वो बहुत छोटी सी शुरुआत करेगा. But he will be very cunning
kind of a cheater. परंतु वो बहुत ज्यादा कनिंग होगा और वो सबको धोखा देगा. And he will root out 3 horns. और वो 3 सिंग जो है उसको उखाड़ डालेगा. And there will be only 8 horns, 7 which are already there, and 8th one is the Antichrist. और 7 सिंग पहले से होंगे और जो 8वां सिंग होगा वो ख्रिस्त विरोधी का होगा. This is what Daniel sees in his visions and tell us. और यहाँ पर जो दानियल अपने स्वप्नों में देख रहा है उसको वो हमें बता रहा है. And then he says in the last part of verse 8. और फिर हम देखते हैं 8वें वचन के आखिरी भाग में. This is Daniel 7 and verse 8. दानियल 7 और उसका 8. Last part. आखिरी भाग. Then I saw. फिर मैंने देखा कि एक सिंग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है. This horn which comes up emerges later. और ये जो सींग बाद में उगकर आता है, this is different from all other horns. ये दूसरे सींगों से अलग है. He has eyes that of a man. और इसकी आंखें जो है वो मनुष्य की सी है. And he is given power to speak big things. और वो बड़ी बड़ी बातें बोलेगा. So he is a person who has a perspective about this world and eyes to see the world. और ये इस तरह का व्यक्ति है कि इसके पास ऐसी आंखें हैं कि ये संसार को देख सकता है. And he has everything evil in his eyes. और इसकी आंख में सब कुछ evil है. And he is a human being. और ये एक मनुष्य है. Remember, Antichrist will be a human being. आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो ख्रिस्त विरोधी होगा वो एक मनुष्य होगा. And he will come up and he will have extraordinary ability or skill. वो उठकर आएगा और उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होगी. A way to see the world. और वो अलग नजरिए से इस संसार को देखेगा. A way to manage the world. और वो अलग तरीके से इस संसार को मैनेज करेगा. And the second thing is that he had a big mouth to speak against God. और दूसरी बात ये होगी कि उसके पास एक बड़ा मुंह होगा जो परमेश्वर के खिलाफ. He is a boastful man. और वो ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बारे में काफी बड़ाई करेगा. He has no depth in himself. उसके पास कोई गहराई नहीं होगी. But his words are very boastful. परंतु उसके जो शब्द होंगे वो घमंड से भरे हुए होंगे. That kind of trend we already see in this world where leaders behave in this way. और हम इस तरह के ट्रेंड्स को देखते हैं जब लीडर्स इस तरह की बातें करते हैं. Lot of leaders globally are people who talk so many great things but have no foundation in themselves. हम तरह के लीडर्स को देखते हैं जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं परंतु उनका कुछ बेस नहीं होता. This is happening worldwide. और ये पूरे संसार में ऐसा हो रहा है. This is an introduction or prelude to the kind of attitude that Antichrist is going to have. और ये इंट्रोडक्शन है उस बात का जो ख्रिस्त विरोधी दिखाने वाला है आने वाले दिनों में. So we come back to chapter 17 of the book of Revelation. हम वापस आ जाते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय में. And here John is seeing in his vision. और यहाँ पर यूहन्ना एक विजन देखता है. And we have seen the verse 11. और हमने 11वें वचन का अध्ययन किया. Verse 12. 12वें को. The 10 horns which you saw are 10 kings who have received no kingdom as yet, but they will receive authority for 1 hour as kings and with the beast. जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे. We understand that the small horn is emerging later. हम इस बात को समझते हैं कि जो छोटा सिंह है वो बाद में उगकर आ रहा है. But the small horn takes over everything. परंतु ये जो छोटा सिंह है ये सारे सिंहों के ऊपर राज्य कर रहा है. He is the leader of the total 8 horns. और ये जो 8 सिंह है उसके ऊपर ये लीडर होगा. And everybody commits to this latter horn. और हर कोई इसके अधीन हो जाएगा. And the kings and the other leaders will submit to this. और दूसरे राजा और हर कोई इसके अधीन हो जाएंगे. And they receive authority for 1 hour as kings with the beast. और ये अधिकार ले लेंगे उस पशु के ऊपर. One who emerges later grows so fast that he is there to give power to the other kings. और दूसरा जो आखिरी जो सिंह उगता है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि वो दूसरे सिंहों को भी अपना पावर देगा. So he will be an emerging authority who starts so humbly but takes over everything. वो बहुत दीनता के साथ शुरुआत करेगा परंतु सारी चीजों पर हावी हो जाएगा. And it appears that he will be so autocratic or so commanding that other people might not like him but they'll have to come under him. हम इस बात को समझते हैं कि वो
इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि दूसरे लोग उसे पसंद नहीं करेंगे परंतु उसके अधीन हो जाएंगे। Verse 13, these are of one mind and they will give their power and authority to the beast. ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। So he becomes the sole authority. और यहाँ पर ये अथॉरिटी बन जाता है। And all the kings of this earth will yield to this eighth ruler. और ये जो 8वां शासक आएगा, बाकी जितने भी शासक है वो इसके अधीन हो जाएंगे। And they will make war with the lamb. This is verse 14. और ये मेमने से लड़ाई करेंगे, ये 14वें वचन में हम पाते हैं। They will make war with the lamb and the lamb will overcome them, for he is the Lord of lords and King of kings, and those who are in with him are called chosen and faithful. वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उनके साथ है और वे भी जय पाएंगे। See the language of the Bible. और यहाँ पर परमेश्वर के वचन की भाषा को देखिए। See, at the very beginning of chapter 17, John was told, "Come, I'll show you the punishment of that woman." 17 जो अध्याय है उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना को किस रीति से बताया जाता है कि उस महिला का क्या दंड होगा। Now, it is already, the result is declared. और यहाँ पर दंड डिक्लेयर हो गया है। So the woman, as impressive she might be, but ultimately she will be judged and perished. वो महिला जो है वो कितनी भी इम्प्रेसिव क्यों ना हो, परंतु अंत में उसको दंड दिया जाएगा और उसका न्याय होगा और उसको पनिशमेंट मिलेगी। Similarly, the beast, however successful he may be, and he will come to the extent of fighting with the lamb. उसी रीति से वो पशु जितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, इतना कि वो मेमने से भी लड़ने को रेडी हो जाए, but will not be able to stand. परंतु वो खड़ा नहीं रह पाएगा। So you know the end. और आपको यहाँ पे अंत Before God talks about the happenings, इससे पहले कि परमेश्वर जो होने वाला है उसके बारे में बात करें, he declares the end. वो अंत को हमें पहले ही बता देता है। As it is declared that he crushed the head of Satan on the cross. और जिस रीति से उसने बताया कि उसने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। So Satan has nothing like a judgment for him left. और शैतान के पास किसी भी तरह का न्याय बाकी नहीं रह गया। Before the judgment seat of Jesus is established, इससे पहले कि यीशु के न्याय का सिंहासन एस्टैब्लिश हो, the beast and the dragon and the false prophet will already be in hell. पशु, अजगर और वो झूठा भविष्यवक्ता, ये तीनों नरक में होंगे। They don't have any judgment for them. इनके पास कोई किसी भी तरह का न्याय नहीं है। And blessed are the people of God who know that these are doomed and they should not go behind them. और धन्य है वे लोग जो इस बात को जानते हैं कि ये जो 3 जंतु है ये खराब है और इनके पीछे इनको जाना नहीं है। Should never follow Satan in any case. हमें किसी भी रीति से शैतान का पीछा नहीं करना है, Because he is doomed to hell. क्योंकि वो नरक के लिए ही है। It is declared. और ये कह दिया गया है। And anybody who follows Satan is also doomed to hell. This is also declared. और जो भी कोई शैतान के पीछे चलेगा वो भी नरक में जाएगा, ये भी कह दिया गया है। So let us have the wisdom of God. तो आइए हमारे पास परमेश्वर की समझ हो। We'll talk a little about this beast again. हम इस पशु के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। Turn with me to Ezekiel chapter 28. मेरे साथ निकाल लीजिएगा यहेजकेल उसके 28वें अध्याय को। He is called the King of Tyre in chapter 28. और 28वें वचन में हम देखते हैं उसको सोर का राजा कहा गया है। Now, the city Tyre is like the Babylon, the harlot which we have studied about. जो सोर नगर है ये उस वेश्या के समान है और ये उस नगर के समान है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। And Ezekiel in his prophecy talks about it. और यहेजकेल अपनी प्रोफेसी में इसके बारे में बात कर रहे हैं। And he gives a name to the city. और वो इस नगर को नाम देते हैं। Whereas in chapter 17, it is called a city of 7 hills, but the name is not given. प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में जब हम देख रहे हैं तो उस नगर को कहा गया है कि वो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है, परंतु उसको किसी भी रीति का नाम नहीं दिया है। Now, how about this beast who has fallen from heaven? और ये जो पशु है जो स्वर्ग से गिराया गया, How about him? What the Bible says? इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है? Verse 2, दूसरा वचन, the last part of it. आखिरी भाग हम इसका देखेंगे। Ezekiel 28 and verse 2.
यहेजकेल 28 और उसका दूसरा वचन। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा देखता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। You are not God but a man. तू परमेश्वर नहीं परंतु मनुष्य है। You see, Antichrist is going to come as a man. क्रिस्त विरोधी मनुष्य की रीति में आएगा He will sit on the throne. और वो सिंहासन पर बैठेगा। People will see him as a man. लोग उसे मनुष्य की तरह देखेंगे। And if you read the book of Zechariah, he will be wounded also. और यदि आप जकरिया नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो घायल भी किया जाएगा। His right eye will be totally spoiled. उसकी दाहिनी आंख पूरी तरह से खराब कर दी One of his arms will be dried up. उसका एक हाथ सुखा दिया जाएगा। And he will remain as such for till the end of this world. और वो उसी रीति से जगत के अंत तक रहेगा। So he's a man. और वो एक मनुष्य है। And he shows as if he is God. वो दिखाएगा ऐसा कि जैसे परमेश्वर हो। And he will tell the world, worship me because I am resurrected. I was dead and I live again. वो कहेगा कि मेरी आराधना करो क्योंकि मैं मर गया था, मैं जी उठा हूँ। I am an elevated being. I am a godly being. और मैं परमेश्वर के समान हूँ और मैं एक उठाया हुआ व्यक्ति। How foolish he is. कितना मूर्ख है वो। As a fallen angel, he takes a body and comes and shows that he is a human being. और वो ऐसे स्वर्गदूत की तरह जो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और मनुष्य का शरीर ले But poor fellow has to imitate Jesus Christ who became a human being for us. परंतु उसको यीशु मसीह के समान कॉपी करना पड़ा कि वो मनुष्य बने हमारे लिए। Because Jesus became a human being, he thought that if he comes as a human being, he'll be able to control the world. क्योंकि जिस तरह से यीशु मनुष्य के रूप में आया, उसने भी सोचा कि वो मनुष्य के रूप में आए तो वो यीशु को कॉपी करके पूरे संसार को कंट्रोल में करेगा। God manifested in Jesus Christ, the dragon manifests in the beast. परमेश्वर जिस रीति से यीशु मसीह में मैनिफेस्ट हुआ, उसी रीति से जो अजगर है वो पशु में मैनिफेस्ट हुआ। But he is a man. परंतु वो मनुष्य है। And because he is a man, और क्योंकि वो मनुष्य है, he will die as a man. वो मर जाएगा मनुष्य के समान। But people will think that he is God. परंतु लोग ऐसा सोचेंगे कि वो परमेश्वर है। This would be his last trick with humanity. और ये उसकी आखिरी ट्रिक होगी मनुष्य के साथ। And also I would like to draw your attention to verse 10 of chapter 20 of Ezekiel. और 28वें अध्याय के 10वें वचन पे भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा यहेजकेल के। You shall die the death of the uncircumcised by the hand of aliens, for I have spoken, says the Lord God. तू परदेशियों के हाथ से खतना रहित लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। So God says he'll be killed by the aliens or the people around. परमेश्वर हमें ऐसा बताते हैं कि वो परदेशियों के हाथ से मारा जाएगा। But the important thing that I want to tell you is that you will die as an uncircumcised person. परंतु महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो खतनाहीन लोगों के समान मारा जाएगा। Means the Antichrist who will be coming will be of a circumcision background. तो ये खतना किए हुए लोगों में से आएगा। So the two groups which are circumcised in this world today. तो दो तरह के ग्रुप्स होंगे जो जिनका खतना होता है। One is the generation of Ishmael, that are the Islamic people. एक इस्माइल की जनरेशन होगी जो कि इस्लामिक, and other are the Jews. और दूसरे यहूदी। Every likelihood that he wants to imitate Christ, और ऐसा हो सकता है क्योंकि वो यीशु को के समान काम करना चाह रहा है। Antichrist would be a Jew. जो क्रिस्त विरोधी होगा वो यहूदी होगा। And he would be circumcised. और वो खतना किया हुआ होगा। And that is why the people will accept him in Jerusalem and say that he is our king. और इसीलिए यरूशलेम के लोग उसे ग्रहण करेंगे और कहेंगे कि वो हमारा राजा है। He will influence the world over. और वो पूरे संसार को इन्फ्लुएंस करेगा। But his access to Jerusalem will be easy because he is a circumcised person. परंतु उसका मंदिर में प्रवेश करना यरूशलेम में इसीलिए आसान होगा क्योंकि वो खतना किया हुआ व्यक्ति होगा। But the blessing of circumcision which was with Abraham is not going to rest upon him. परंतु वो जो आशीष खतना वाली जो इब्राहिम के समय से थी वो इस पर ठहरी नहीं रहेगी।
You see, you need to understand that Jesus was also circumcised. आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु का भी खतना हुआ था He fulfilled all Jewish laws. और उसने सारे यहूदी बातों को अपने जीवन में And पूरा on the किया। 8th day, he was brought into the temple by the parents to be blessed over there. और 8वें दिन उसको मंदिर में लाया गया कि उस पर आशीष की घोषणाएं हो। And Jesus was circumcised. और यीशु का खतना हुआ था। But the church does not need any circumcision today. परंतु कलीसिया को किसी भी तरह के खतने की जरूरत नहीं है। See how witty and how smart Antichrist would be. देखिए कैसे क्रिस्त विरोधी जो होगा वो बहुत स्मार्टली काम करेगा। He would try to imitate Christ even in the background also. और वो जो बैकग्राउंड था यीशु का उसको भी कॉपी करने की कोशिश करेगा। And he would be perhaps a Jew. और ऐसा हो सकता है कि वो यहूदी हो। And he would influence the world as a Jewish और person. वो यहूदी व्यक्ति की तरह इस संसार पे अपने इन्फ्लुएंस को लेकर आएगा। And the whole world will follow him. और सारा संसार उसके पीछे चलेगा। Even today, Jews are the most influential people in this world. आज भी यहूदी लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इस संसार में। Though they do not acknowledge Jesus as their savior, वो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते। but the richest and wisest people of this world are Jews. परंतु जो सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले लोग इस संसार के यहूदी हैं। So his acceptability will be very readily taken by the world. तो बहुत आसानी से पूरा संसार उसको ग्रहण कर लेगा। And the 7 years treaty which is going to happen between the world forces and Israel और 7 साल की संधि जो पूरा संसार और इजराइल के बीच में होगी will be implemented by this Antichrist. वो इस ख्रिस्त विरोधी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट होगी। And this will be acceptable to the world as well as to the Jews. और ये पूरे संसार इस बात को ग्रहण करेगा और यहूदी लोग भी इस बात को ग्रहण करेंगे। Jews will feel that he is one of them. यहूदी ऐसा सोचेंगे कि ये उनमें से एक है। And those who are weeping on the wailing wall will think that they have received their Messiah. और जितने लोग उस वेलिंग वॉल में रो रहे हैं वो इस बात को मानेंगे कि ये हमारा मसाया है। Later, after 3.5 years, they'll know that he is Satan. और 3.5 साल के बाद उन्हें पता चलेगा कि ये तो शैतान है। So these are the beautiful mysteries that are disclosed to us in the Word of God. ये परमेश्वर के वचन के भेद है जो हमारे सामने है। Let's meditate and thank God for all these words आइए हम परमेश्वर के वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस पर ध्यान दें and look to Him for His revelation और उसके प्रकाशन की ओर अपनी आंखें लगाएं। and the wisdom which is talked about. जिस बुद्धि के बारे में बात की गई है, जिस समझ के बारे में बात की गई है, उससे हम पाएं। The rest of the things we will meditate in the next episode. आगे की सारी बातों को हम आगे वाले एपिसोड्स में देखेंगे। Thank you so much and God bless you. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।